very good afternoon, media साथीगण। बीजेपी पार्टी का ये दूसरा प्रेस वार्ता आज कोल माइनिंग के बारे में हम लोग पहले भी हम लोग कहा, आप लोगों के माध्यम से आदिवासी को हमने बताया है। तो आज ये दूसरा चरण का हम लोग कोल माइनिंग के संदर्भ में आज हम उपस्थित हुए हैं। तो हमारा बीच में आज एकत्रित होते हुए हम लोग विराजमान है मेरे बहुत ही करीब हमारा अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी का सेक्रेटरी जनरल आदरणीय कीपा नातुंग जी, और उनके बगल में हमारा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आदरणीय समा बगान जी। तो जिस प्रकार से हम लोग अरुणाचल में जो इलीगल कोल माइनिंग हो रही है, इसके बारे में हम लोग ने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे हमने बताया था। ये आज हमारा दूसरा चरण है इस मुद्दे को लेके। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जो अगले जो बाद में बहुत ही भरपूर तरीके से आपके समक्ष जो हालात है और जो सिचुएशन के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय समा बगान जी को कि वो आगे के बारे में आप लोग को मालूम है। धन्यवाद। Very good afternoon to all. Myself, Sama Bagan, Secretary Party Organization. जैसा कि आप लोग ने सुना कि मैं इस पॉइंट पे मैं रीड आउट कर देता हूँ, वो बेटर रहेगा सबके लिए। Coal deposit in Changlang district is a very big asset for the state of Arunachal Pradesh in particular and nation as well. Coal is one of the most important resource which boosts the country's economy, energy production, various industrial applications, job creations, etc. Arunachal Democratic Party is seriously concerned about the illegal coal mining going on for the last 10-12 years at various places, which Namchuk, Nampung, Coalfield, Rengrikan, Penbero 1, Penbero 2, that is Namtuk area in Changlang district of Arunachal Pradesh. In this regard, we the Arunachal Democratic Party have discussed with various government machineries of the state, and we have placed our concern in form of representation to Chief Vigilance Officer, Chief Minister and Governor of Arunachal Pradesh, and even to the Ministry of Coal, Government of India as well, Her Excellency, President of India, to initiate immediate measures to stop the ramping illegal coal mining activities in the already mentioned areas in Changlang district of Arunachal Pradesh. Taking cognizance of our representations, Government of Arunachal Pradesh has taken swift action and constituted 7 members committee on 7 November 2024 under the chairmanship of Sri Vishal Shah, IS, DC Changlang, and clearly outline the terms of reference. Copy of 7 members committee is enclosed here with press release. In this regard, we the Arunachal Democratic Party is very much thankful to Government of Arunachal Pradesh to realize the importance of coal in Arunachal Pradesh.
and swift, quick response to the representation submitted by our party. This goes with an old saying, all well that ends well. But while submitting our sincere appreciation and thankfulness to the government, we would like to place our appreciation of unfair and improper investigation by the committee constituted. To place our appreciation of an unfair and improper investigation by the committee constituted by the government of Arunachal Pradesh based on the following points. Number one, the committee was constituted on 7 November 2024, where the committee has been clearly directed to submit a comprehensive action taken report with finding and recommendation of the investigation as per TOR within 15 days from the date of issue of the order. But here it is regret to say that the Director Geology and Mining, Government of Arunachal Pradesh, provided us the office of order copy pertaining to the constitution of committee on 22 November 2024 only. That too, after being repeatedly requested from our side, further to our utter surprise, the 15 days deadline for submission of comprehensive report is already over, but the investigation work has not been started yet. It seems the committee is using delay tactics so that they can suppress the public interest. This type of action is uncalled for and attract doubt and suspicion on the credibility and integrity of the officer deputed in the committee. Number two, further, it has been more than a decade that such illegal activities are going on under fingertip of district administration, Changlang district. But they could not stop such activities of illegal coal mining. Hence, the committee constituted under them make no sense on the ADP's point of view. Anyways, ADP is still hopeful that the committee constituted by the government of Arunachal Pradesh will discharge duties entrusted to them with full zeal and enthusiasm. By following your outlines by the government of Arunachal Pradesh and submit factual reports within a short period. Last but not the least, we the Arunachal Democratic Party will always play a vigilant role to safeguard the people's interest of a state and its resources, which includes forests, coal, minerals, etc., and fight against any form of corruption in the state. Jai Hind, Jai Arunachal, Jai ADP. Thanks. इसके साथ में हमारा सारा सिस्टम को तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी ने बता दिया है, सारा सिस्टम को वहाँ पे लिखा हुआ आप लोगों को सुना दिया। इसके साथ साथ मैं एक इस इशू के चेयरमैन होने के नाते, कमेटी चेयरमैन होने के नाते मैं एक दो शब्द रखना चाहूँगा। और यहाँ पे देखिए, सारा जनता को मैं बता दूँ, हमारा यहाँ कम लोग समझता है और जानता है, और ऐसे लोग को हमारा जैसा पार्टी अगर नहीं बताएगा तो कोई नहीं समझेगा। इसीलिए बार बार ये 2 टाइम आना पड़ा, अगला बार भी आने को है, हम लोग जारी है जब तक ये
एग्जैक्टली प्यूरिफाई नहीं होगा तब तक हम लोग इसको जारी करेंगे। तो मैं आप लोगों का माध्यम से मैं बता दूं कि यहाँ एक ऑर्डर दिया गया है जहाँ से माइनिंग डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग ईटानगर, वहाँ से एक ऑर्डर दिया गया है नवंबर का 7 तारीख को। 7 तारीख को कमेटी गठन किया है उन लोगों ने। यहाँ में 7 कमेटी गठन किया गया है। अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी ने आप लोगों को बताया। तो हम लोग को देखो, ये इशू को लेकर हमारा एजीपी पार्टी का तरफ से हम लोग को भी एक कमेटी यहाँ में इंक्लूड किया जाना चाहिए था। ये थोड़ा सा हम लोग के लिए मिस्टेक लगा है, उन लोग का तरफ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, हम लोग ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसी को लेके एजीपी अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी जो लेके जा रहा है और ये हम लोग का डिमांड और जनता का जो ग्रीवेंस है इसको लेके हम लोग ने रखा है बात। दूसरा बात ये है कि यहाँ में टर्म्स ऑफ रिफरेंस यहाँ में 10 पॉइंट जो दिया गया है। देखिए यहाँ में मैं सीधा सा सबसे पहले तो इस रिपोर्ट को देने का मैं शुक्रिया कहूँगा कहते हुए, जैसा अभी यहाँ में 10 पॉइंट दिया हुआ है, देखो यहाँ का कोई भी पिछला जो 10-15 साल से जो इलीगल माइनिंग, कोल माइनिंग जो एक्टिविटीज हो रहा है उन लोगों को XYZ जैसा माफिया को लेके बाहर स्टेट से आके जो एक्टिविटीज कर रहा है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन सबको वेरीफाई करके इंक्वायरी करके ये रिपोर्ट को सही सलामत अगर हम लोग को नहीं दिखाएगा तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। वैसा हम लोग ने SIT में भी देख के रखा हुआ है, अभी तक रिपोर्ट वहाँ से आया नहीं। तो सीधा सा ये हम लोग का कहना ये है कि अब 7 तारीख को ऑर्डर निकला है तो हम लोग को 21 तारीख को दिया। ये तो सरासर हमको लगता है आई वॉश कर रहा है, ऐसा सिर्फ दिखावा के लिए, ये कोई सही तरीका से काम करने नहीं जा रहा। मैं सारा जनता को आप लोग का मीडिया का माध्यम से मैं बता दूं, ये सब आई वर्क के लिए हम लोग को दिया गया है। 15 दिन आज कंप्लीटली 15 दिन हो चुका है और हम लोग ने रिपोर्ट को भी मांगा, लेकिन रिपोर्ट हम लोग को दिया नहीं है। सारी कमेटी गठन किया, उनका रिपोर्ट क्या है उसका हम लोग का कोई अता पता नहीं है। तो इसलिए यहाँ देखिए, ये हम लोग का मांग है कि अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी का मांग है कि आने वाला का जो बेरोजगार वो रोजगार मिले, इसके साथ जो वहाँ का जो नीति है जिनको हकदार मिलना चाहिए वो फुलफिल बराबर हकदार मिलना चाहिए। अगर कोल माइनिंग जो अगर इम्प्लीमेंट फिर से एक्टिविटीज होता है तो ये हम लोग का डिमांड रहेगा, आगे भी रहेगा। और इसके लिए आने वाला था अगर सरकार हमारा बात को कदर नहीं करता है तो हम बहुत सा हद तक जाने का तैयार है, चाहे प्रोटेस्ट हो चाहे धरना हो, जहाँ तक कि बंद कल भी ऐलान करने का दिन आए तो हम उसको भी निभाएंगे। तो इसलिए इसमें सारा जनता को समझना है, जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और ये जो है कोल माइनिंग जहाँ में हो रहा है, इलीगल जो एक्टिविटीज हो रहा है, ये हमारा स्टेट का प्रॉपर्टी। कोई बाहर से आएगा, आराम से बिजनेस करेगा, लेके करोड़ों उठा के ले जाएगा, ये हम नहीं चाहता है। और दूसरा, अगर सही तरीका से अगर कल को अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए
तो सबसे पहला हमारा स्टेट का रेवेन्यू जो आएगा, अनएम्प्लॉय जितना भी है उन लोगों को वहाँ में एंट्री कर पाएगा। इसीलिए ये हम लोग का आगे डिमांड रहेगा। और इसके साथ ही मैं यही मेरे बात को रखते हुए धन्यवाद।